ప్రార్థన కూడిక సమయం ఉన్నవారు ప్రభు సన్నిధానం వచ్చి ప్రార్థనలో మాతో పాటు ఏకీభవించాలని మనవి. ఆరాధన 10:30 గంటల కంటే ఆలస్యం వస్తున్నాము. ప్రభు వాక్యం ప్రతి సమయంలో మనతో మాట్లాడుతున్నది. आराधना का समय 10:30 है, अपन हमेशा लेट आते हैं. प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने से बात कर रहा है ताकि अपन प्रभु के वचन को डरे. समय पे आएंगे प्रभु के पास. और आज बहुत से लोग नहीं आए, చాలా కుటుంబాలు రాలేవు. పరిమళ కుటుంబం రాలేదు. జాన్ బాబు మెసేజ్ చేసిండు రానని, ఉద్యోగంకు వెళ్తున్నానే అతని గురించి ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు. దోసదాస్ కుటుంబం ఈరోజు మెసేజ్ చేసిండు రానని. అయితే ఆ కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేద్దాం. పరిమళ కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేద్దాం. మరియు దీప కొమ్మరి అనంతరావు ఎప్పుడు వస్తాడు, ఆయన ఆరోగ్యం గురించి మనం ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. సుకునక్క గురించి ప్రార్థన చేద్దాం. అక్కడ గణపతులు నడుస్తున్నాయి, రాతందుకు చాలా కష్టం అక్కకు. అక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆమె గణేష్ గల్లిగానే ఉంటుంది. లాల్బాగ్ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే ఆమె గురించి ప్రార్థనలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మరి ఈరోజు మన మధ్యలో ఎబినేజర్ సార్ ఉన్నాడు. अपने बीच में प्रभु के दास एबनेजर सर है. अपन साइलेंस से प्रभु के वचन उनके द्वारा अपन सुनेंगे. तब से पहले एक छोटा सा गाना गाने के बाद प्रभु के वचन सुनेंगे. कोई भी एक आके छोटा सा एक गाना गाने के बाद प्रभु के दास एबनेजर सर प्रभु का उपदेश अपने सुनाएंगे और अपन ध्यान से सुनेंगे प्रभु उनके द्वारा क्या बात करते हैं. తొందరగా అందరికీ వందనాలు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకితి నీవే సారితిని అంతటా తిరిగితి, వెదకితి నీవే సారితిని అంతటా తిరిగితి. తను కానరాక నీ కలత చెందితి, తను కానరాక నీ కలత చెందితి. వేదనతో రోదనతో కన్నీరే కార్చితి. నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు, నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు, ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. కొండలను కొండ కోనలనడిగా నా ప్రభు ఎక్కడని, సముద్రములను జలరాశులనడిగా నా ప్రభు ఎక్కడని. అడవులనడిగా అందులో జీవులనడిగా, అడవులనడిగా జీవులనడిగా ఉలికే లేదు పలికే లేదు జవాబే లేదు.
నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. రివ్వున ఎగిరే గువ్వల నడిగా దేవుడు ఎక్కడని, సుమధుర గానాల కోయిల నడిగా నా ప్రభు ఎక్కడని. జల జల పారే సల్వేటి నడిగా, జల జల పారే సల్వేటి నడిగా, ఉలికే లేదు పలికే లేదు జవాబే లేదు. నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకితి నీవే సారితిని, అంతటా తిరిగితి తను కానరాక నీ కలత చెందితి. తను కానరాక నీ కలత చెందితి, వేదనతో రోదనతో కన్నీరే కార్చితి. వందన. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपणा सर्वांस सलाम. सलाम. खरंच तुम्ही गाठून गेलात. काल दिवसभर पाऊस, रात्रभर पाऊस, त्यामुळे सगळ्यांना सलाम बोलायला ताकद राहिली नाही. प्रभूचे आभार मानतो. चला, मी आज मराठीमध्ये बोलणार आहे. किती जणांना समजणार नाही. समजणार नाही. आणि इसमें ज़्यादा लोग मराठी समझते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. बीच में आपके लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं बीज बोते हुए से बोलूँगा. चलो, एक क्वेश्चन. मेरा सभी संदेश क्वेश्चन से शुरुआत होता है, आपको पता है. आपके घर में किसके किसके घर में पशु पक्षी प्राणी है? हाथ ऊपर कीजिए. प्राणी का नाम लेना चाहिए, पक्षी का नाम लेना चाहिए तो लेता हूँ. कुत्ता किसके घर में? पैरोट किसके घर में? बिल्ली किसके घर में? और क्या ले लो नाम? अभी कोई बोल ही नहीं रहा है कि मेरे पास है करके. आज का जो मैं सब्जेक्ट निकाला हूँ, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं सिखाना चाहूँगा तो ये सब की जानकारी होनी ज़रूरी है. अच्छा, चलेगा. आपके घर में नहीं है, दूसरे किसी के घर में है और हम वहाँ जाते हैं.
तो बिहेवियर कैसा रहता है, कुत्ते का बिहेवियर कैसा रहता है? भोंकता है यानी उसको पसंद नहीं आप, बराबर? वो बात नहीं है। मेरे घर में कुत्ता नहीं, लेकिन मैं प्राणी पशु पक्षी का बहुत सर्वे करने वाला आदमी हूँ। कुत्ता भौंकता है तो उसका मतलब है आपको घर में आना है तो मुझे पहला बात करो, यानी मुझे पहला पूछो। अगर आप मुझे पूछते नहीं तो मैं आगे जाने नहीं दूंगा। दूसरी बात, वो घर में हम प्रवेश करते तब कुत्ता गुर 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 करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि घर में तो आया, मेरे मालिक की वजह से घर में आया, बैठा है, लेकिन अभी तक तूने मुझे पूछा नहीं। उसका जब ऐसे चलता है ना, उस वक्त मालिक पहचान करके देता है ये जाति का कुत्ता है और ये मेरा इतना सालों से मेरे घर में रहता है। तो उसको बहुत खुशी होता है। कुत्ता जब सुनता है मेरा मालिक मेरे बारे में तारीफ कर रहा है तो उसको बहुत खुशी होता है। वो क्या करता है, ज़रा थोड़ा सा साउंड बढ़ा के गुरगुर करने लगता है। इसका मतलब, अरे इतना बताया फिर भी मुझे तो कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ? कुत्ते का एक स्वभाव। चलो बिल्ली, बिल्ली के बारे में मालूम है आपको? बिल्ली बहुत लोचट है। लोचट मतलब, हाँ, वो मालिक के पीछे पीछे घूमेगी। मालिक के पाँव या कोई भी शरीर का अंग जो है उसको अपना शरीर घुसेड़ कर चली जाएगी। हाँ, वो देखती रहेगी। कभी कभी ऐसी भी बिल्ली है, मैंने हमारे घर में एक बिल्ली पाली थी, इसलिए पता है। बिल्ली को गुस्सा आएगा ना, एक भी चापट मार देती है। वो देखती नहीं, अरे ये मालिक है, मुझे खिलाती है, सब कुछ करती है, फिर भी देखती नहीं, मार देती है। चलो पैरोट के बारे में देखेंगे। पैरोट क्या करता है? पैरोट जो है सिर्फ बकबक 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 करता है। उसका कोई आए कोई ना आए, उसका चालू ही रहता है। कोई तो गधा भी पालता है। गधा क्या करता है? हाँ, वो भी चिल्लाता है। वो चिल्लाता है तो मालिक को बहुत ये होता है, क्यों चिल्ला रहा है? अभी आखिरी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। कपोत यानी कबूतर, उसकी आवाज़ कैसी है? कभी किसी ने सुना? 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 कैसे है? कबूतर की आवाज़ जो है बहुत धीमी है। वो इतना क्या बोलते हैं, आलसी कबूतर है। उसके स्वभाव में ही वही गुण। लेकिन वो किसका कुछ भी चले, मुझे खाना मिल रहा है ना, बस हो गया। वो किसी के और देखता नहीं। लेकिन कभी उस कवार उसको नाम रखा जाए और उसको बुलाया जाए तो झट से आकर बैठ जाता है। इस सब प्राणी का आपको बताने का मतलब ये है कि मुझे आज प्राणी के ही गुण से सिखाना है। चलो
हम किस प्राणी को चुनते वो देखेंगे। श्रेष्ठ गीत उसकी दूसरी अध्याय और उसके 14वें वचन में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र संहितेच्या नंतर सॅम चॅप्टरच्या नंतर आम्हाला गीतरत्न सापडेल। नीतिसूत्रे, उपदेशक, गीतरत्न, दुसरा अध्याय आणि 14 वचन। हां, हे मेरी कपुत्री, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुछ में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरी बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। इथे जे म्हटलेलं आहे कपोते, ह्या कपोत्याविषयी आज आम्ही शिकणार आहोत। आणि शिकते वेळेस मी तुमचा टाईम बिलकुल जास्त घेणार नाही। सर्वजण जरी लेट आलेला असलात तरी तुम्हाला वेळेत सोडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। कारण जर मी हिंदीमध्ये बोललो तर माझा अगदी जास्त वेळ जाईल, पण मराठीत बोललो तर मी फास्ट ट्रेनसारखा पळत जाईल। आणि म्हणून मी मराठीमध्ये बोलत आहे। एखादा शब्द तुम्हाला हिंदीमध्ये जरूर समजावून सांगेल, नाही समजलं तर फक्त छोटासा हात वर करा, मी जरूर समजावून सांगेल। पहा, ह्या कबुतराची उपमा ह्या ठिकाणी कोणाला दिलेली आहे बरे? हां, पवित्र आत्म्याला। असं आहे का? रिअली असं आहे का? आम्ही आज शोध घेऊया। त्या कबुतराला पवित्र आत्मा म्हटलेला आहे की त्या कबुतराला दुसरं काय म्हटलेलं आहे? कारण ह्या ठिकाणी जो उल्लेख केलेला आहे हा उल्लेख आम्ही पाहताना तेथे असं म्हटलेलं आहे, खडकाच्या कपारीत राहणारी आणि कड्याच्या आडोशास राहणारी। खडकाच्या कपारीत म्हणजे कशामध्ये? प्रियांनो, आम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे। खडकाच्या कपारीत, कपारीत म्हणजे अहो, जेव्हा वेळेस हा खडक आहे आणि ह्या खडकाच्या मध्ये फट पडलेली आहे, याला कपार म्हणतात। या कपारीमध्ये कबूतर आपलं घर तयार करतं आणि तेथे राहतं। कोणालाही दिसू नये मी कुठं राहते यासाठी प्रयत्न करणारा हा पक्षी आहे। आणि ह्या पक्ष्याला दुसरीकडं कुठं जागा सापडत नाही। अहो, घरामध्ये जरी त्याने त्याचं स्वतःचं घर बनवायचं झालं तर तो घरामध्ये शोधतो कुठे कपार आहे, कुठे कोपचा आहे की ज्या ठिकाणी तो स्वतःचं घर करेल। आणि बरेचदा असं होतं, एखादा पक्षी येऊन त्या ठिकाणी घर बनवतं, अंडे घालतं, पिल्ले काढतं, तरी आम्हाला कळत नाही की त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, घरटं केलेलं आहे। आणि ह्या घरट्यामध्ये खरोखर पक्ष्यांचा ज्यावेळेस आवाज यायला सुरुवात होतो त्यावेळेस आम्हाला समजतं कुठेतरी घरामध्ये काहीतरी गडबड आहे। एवढी बात समजली? ओके, चला। ह्या कपारीमध्ये राहणारी, ह्या आडोशास राहणारी ही पक्षी आहे, हा प्राणी आहे, बरोबर आहे। दुसरी गोष्ट आम्ही पाहूया। पुढे असं म्हटलेलं आहे, मला तुझे मुख पाहू दे। आता जी कपारीत राहते, अगदी कोपच्यामध्ये राहते आणि अगदी कुठंतरी आडोशाला राहते, तिचं तोंड कसं का पाहणार आम्ही? पाहू शकतो का? अहो, ती अशा प्रकारचं घर बनवते, घरटं जे बनवतं। कधी कबुतराचं घर तुम्ही पाहिलं का? तर तुमच्या लक्षात येईल, कबुतराचं घर असं खोलगट असतं, ती बाजूने सगळं काही गवत बिवत लावून अगदी, आणि त्याच्यात बसते। ते त्याच्यात बसलेले सुद्धा कोणाला दिसता कामा नाही, अशा प्रकारचं ती। अहो, कपारीमध्ये, त्या खडकाच्या कपारीत जरी गेली तर ते एवढा अंधार असतो की त्या अंधारामध्ये ती दिसत नाही। ऑलरेडी तिचा अगोदरच कलर काळा असतो, त्यामुळे ती कशी काय दिसणार?
पण त्या कपारीमध्ये राहून किंवा कोपच्यामध्ये राहून ती आपल्याला लपवून बसलेली आहे. पण या ठिकाणी म्हटलंच गेलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे? परत एकदा तुम्ही वाचा. काय म्हटलं आहे? पहिला मुद्दा, मला तुझे मुख पाहू दे. आता ज्यावेळेस हे वाक्य येतं ना त्यावेळेस आम्ही विचार करायचा, आता हा पवित्र आत्म्याचं मुख कोणी पाहणार आहे का? अहो ज्यावेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा त्या ठिकाणी बाप्तिस्मा झाला, वर आला, लागलेच असं घडलं की कबुतरासारखा आत्मा त्याजवर आला. कबुतरासारखा, नॉट कबूतर. आम्ही शब्दाकडे लक्ष देत नाही म्हणून आमचे गफलत होते. त्या कबुतरासारखा आत्मा त्याजवर आला. या कबुतराचं मुख बघायचंय. हे कबूतर कोण आहे माहिती आहे? या गीतरत्नामध्ये दोनच व्यक्ती आहेत. कोण व्यक्ती आहेत? एक वधू आणि एक वर. एकदा वर वधूची स्तुती करत आहे तर एकदा वधू वराची स्तुती करत आहे. कभी पति अपनी पत्नी की स्तुति कर रहा है, कभी पत्नी अपनी पति की स्तुति कर रहा है. एक दूसरे के बारे में जितना हो सके उतना बोलते जा रहे. और यही बातें करते करते उसने कहा है, हे कपोते. ऐसा क्यों नहीं कहा, ये कुत्ते. हाँ, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? एक पति अपने पत्नी को ऐसा क्यों नहीं कहता है, ये कुत्ते. हाँ, पहले दिन छोड़ के चली जाएगी. सही बात है ना? अरे याद करो, उस पति ने हमें यहाँ तक लेके आया, या रखा है, अपने घर में रखा है. पति ने उसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए? बहुत सारी अच्छी बातें करनी चाहिए. पत्नी जब घर में आती है उसको अलग घर लगता है. क्यों? तो अपना खुद का घर छोड़ के आइए, अपना परिवार छोड़ के आइए और नए परिवार में, नए घर में, नई जगह में एक आदमी के साथ आकर रहती है. तब उसे लगता है जिस आदमी ने मुझे लेके आया वो मुझ पर प्यार करे, मेरे साथ बातें करे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे. उसे लगता है आज प्रभु ने हम सभी को इस जगह पे लेके आया है. और इस जगह पे एक जो बोलते हैं ना खड़क के बीच में जो दरी है उसके बीच में ला कर रखा है. नया है उसके लिए, ये घर नया है उसके लिए. और वहाँ से वो आवाज़ देता है बाहर से. क्या होना चाहिए? पत्नी ने बाहर आकर बात करनी चाहिए. जर तिने त्याचा शब्द ऐकला नाही तर ती बातें करू शकणार नाही. प्रियांनो, येथे बसलेला प्रत्येक जणाच्या अंतःकरणात प्रभूचा शब्द ऐकलेला पाहिजे, तरच तो इथे बोलू शकतो. तो त्याच्याकडे पाहू शकतो, त्याच्या समोर येऊ शकतो. नाहीतर आमच्यामध्ये पत्नीचे गुण नाहीत. मंडळीसाठी हा काय आहे? चपराक आहे. लक्षात ठेवा, ही मंडळीतील प्रत्येक व्यक्तीसाठी चपराक आहे. जर आम्ही प्रभूच्या समोर येऊन उभे राहत नाही तर काय आहे? ही चुकीची गोष्ट आहे. आणि तो काय म्हणतोय? येथे लिहिलेलं आहे, मला तुझे मुख पाहू दे. मला तर निश्चित माहिती आहे तुमच्यापैकी बरेच जण टी व्ही बघतात ना. काय हरकत नाही, तुम्ही
असं लपवून काहीच उपयोग नाही. प्रभू पाहतोय तुम्ही काय करता. त्याच्यामध्ये एक नववधू कशी दाखविली जाते? घुंगटामध्ये दाखविली जाते, बरोबर आहे. आणि तो पती ज्यावेळेस त्या रूममध्ये येतो त्यावेळेस काय करतो तो? मला तुझे मुख पाहू दे. अरे त्याने अगोदर किती वेळेस मुख पाहिलेलं असतं आणि तिने आपलं मुख दाखविलेलं असतं. पण ज्यावेळेस विवाह होतो त्यावेळेस मात्र तोंड झाकून बसते. का बसते मला माहिती नाही. सिस्टर लास्ट में बैठे हो, क्यों बैठते घूंघट लेके वधू? पता नहीं मुझे, इसलिए पूछ रहे. यहाँ कोई बिहारी रहेंगे तो उनको पकता है उसका आंसर. हाँ, एक वधू अपना घूंघट लेके क्यों बैठती है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं जवाब देगी तो भी कोई बात नहीं. एक वधू अपना घूंघट लेके बैठती है, इसका मतलब मेरा वर मेरे पास आना चाहिए और वो खुद अपने हाथों से घूंघट उठाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए. आज यहाँ आकर बैठी है वधू, वर भी आकर यहाँ बैठा है और वो आपका घूंघट उठाता है, लेकिन अंदर कुत्ता दिखता है, अंदर पोपट दिखता है, अंदर बिल्ली दिखता है. सही है, सही है ना? हाँ, एक वधू ही दिखनी चाहिए. इसलिए यहाँ लिखा है मला तुझे मुख पाहू दे. त्याने घुंगट उचललेला आहे, मला तुझे मुख पाहू दे. आणि दुसरं वाक्य, मी जर जास्त बोलत राहिलो तर काय होईल तुम्हाला पूर्णपणे सांगता येणार नाही. म्हणून आपण जरा थोडं पुढे जाऊया. काय लिहिलेलं आहे अजून एक वाक्य? तुझे शब्द मला ऐकायचे आहेत. तेरे बोल मुझे सुनने दे. आज जब आपका घूंघट उठाते हैं, यहाँ के प्रभु जो है वो घूंघट उठाते तो कितने लोग बोलते? एक भी बोलते नहीं. देखो, जब कोई ब्रदर प्रार्थना करता है तो हम सब लोगों ने आमीन जोर से कहना चाहिए. क्यों? प्रभु आवाज सुनना चाहता है. जब कोई यहाँ से आपको बोलते सलाम तो आपको सलाम बोलना चाहिए. क्यों? प्रभु सुनना चाहता है. लेकिन क्या होता है मालूम है? यहाँ बैठने के बाद बस एक ही बात रहती है, ये सामने वाला कब चुप हो जाएगा और कब बैठेगा, यही बात रहती है, दिल में रहती है. देखो, ये शैतान को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आवाज़ बढ़ाया. मेरी बातें किसी को अच्छे नहीं लगती है. क्यों? तो मैं सबका दोष निकालता हूँ. लेकिन दोष निकालते समय भी जोर का धक्का धीरे से लगे, इसकी मैं खबरदारी लेता हूँ. देखो, एक बात, प्रभु को हमारा मुंह देखना जरूरी है. दूसरी बात, हम उससे बातें करें, वो हमसे नहीं, हम उससे बातें करें. पहला जो भाग रहता है वही रहता है, हम उससे बातें करें. हे प्रभु, तेरी धन्यवाद हो, स्तुति हो. तूने मुझे बचाकर
यहाँ तक लेके आया है, मुझे जीवन दिया है, और ये जीवन की वजह से आज मैं तेरी स्तुति कर रहा हूँ। ये बातें मैं प्रभु को देनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए। और देने के लिए ऐसे ऐसे वचन को निकालना जरूरी है। देखो जी, दो बातें हमें समझ में आई। एक, मला तुझे मूक पाहू दे, तुझा शब्द ऐकू दे। कशासाठी बरं? इसका कारण क्या है? शास्त्र में लिखा है, पढ़िए ना ब्रदर, कारण दिया है, वही वचन। मैं इधर उधर दो बातें बताइए, आपके बारे में दो बातें बताइए। क्या दिया है? तेरा कंठ क्या है? मीठा है। यहाँ बैठे हुए सभी पति को क्वेश्चन है, किसको किसको अपने पति की आवाज़ अच्छी लगती नहीं? अगर ना बोलेंगे तो घर में आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी पत्नी की आवाज़ मुझे सुनने के लिए दिल तरसता है, कान तरसते हैं, वो कैसा भी हो। मेरे कमेंडेशन के वक्त एक फैमिली आई थी, और वो फैमिली मेरे फैमिली के बाजू में बैठी। तो उस पत्नी की आवाज़ सुनकर मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां सब हंसने लगी, कि तो उसका आवाज़ इतना कर्कश था, तो वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसी वक्त उनको कह दिया, उसको हंसो मत, वो आवाज़ उसको पति को अच्छी लगती है, कैसी भी हो अच्छी लगती है, हंसो मत। अगर आपकी आवाज़ ऐसी रहती तो पति आपको छोड़ के चला जाता था क्या? नहीं। वो प्रभु हमारा जो है यही कहता है, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। सुबह का मनन जो है उसमें कभी कभी गाने वाले आते हैं, यानी हर दिन आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि जो उनकी आवाज़ ठीक नहीं रहती है, वो गाना गाते हैं ना, कि वो गाना गा रहे हैं या कविता गा रहे हैं वही समझ में नहीं आती है। कभी कभी वही सिस्टर लोग बोलते हैं, ब्रदर मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ, कोई बात नहीं, आप गाइए, अच्छी बात है, आप गाइए। और वो कविता की जरिए, कविता जैसी गाना गाते हैं ना, तो भी मैं कभी ऐसे मुंह पे ऐसा दुख नहीं दिखाता है, कुछ नहीं, हंसी दिखाता हूँ, ताकि उनको प्रसन्न लगे कि अरे मेरी आवाज़ तो सुनी। यहाँ आकर भी प्रभु हमारी आवाज़ सुनते, कैसी भी आवाज़ हो, वो सुनकर खुश हो जाता है। और आगे क्या लिखा है? ये बातें जो है ना मेरे साथ ज़िंदगी में हुई है। जब मैंने लड़की को देखा, पसंद किया, सब उसका फ़ोटो लिया, और वो फ़ोटो मेरे फैमिली के मेंबर, मामा, मामी, चाचा, चाची, सब लोगों में दिखाया। सब लोग बोले, क्या ये तू चूस लिया है? हाँ, ये क्या बहू है क्या? ये क्या है? हाँ, जरा अच्छा देख के तो चुन लो। क्यों? तो मेरी पत्नी की जो नाक है वो थोड़ी बैठी हुई है। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी पत्नी की नाक बैठी हुई इसलिए वो अच्छी नहीं दिखती। मैंने उसका ये गुण देखा कि वो सभी के साथ अच्छी बर्ताव करते हैं। उसके जो भाई बहन है उसको खाना खिलाना,
स्कूल में भेजना, सब काम करती है, माँ बाप को सहायता करती है। ऐसी लड़की मुझे ढूंढ कर नहीं मिलेगी। आज मैं डॉक्टर, मेरे लिए डॉक्टर भी आई थी, अगर मैं डॉक्टर लड़की से शादी करूँगा तो मेरे माँ बाप को संभाले या नहीं संभाले पता नहीं। मैं सभी को नहीं, मुझे पसंद है ना, वो आपका जाने दो, मुझे कुछ मालूम नहीं, सब रिलेशन में बता दिया। माझं तुमच्याशी काही काम नाही, कर्तव्य नाही, मला फक्त एवढंच समजतंय ती माझी पत्नी आहे, बस, ती कशी असो ती माझी आहे। काय परिणाम झाला, ज्यांनी ज्यांनी नाव ठेवलं ते असे म्हणाले तुझी बायको फार सुंदर आहे। का बरे? कारण माझ्या चुलतीला कॅन्सर झाला, कोणी तिला जवळ करेना, पण तिला ज्यावेळेस घरी आणलं त्यावेळेस माझ्या पत्नीने तिची काळजी घेतली, सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत लागणारी प्रत्येक गोष्ट पुरविली। आणि ह्यामुळे खरोखर ज्या सासूने तिला नाव ठेवलं बसक्या नाकाची, तिच्याविषयी ती म्हणाली, ये पण तू छान बायको निवडलीस। माझ्या पत्नीला ती म्हणाले तू छान आहेस, सुंदर आहेस। का बरे? कारण तिने केलेली सेवा त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवली, पाहिलं। आम्हालाही आमच्या जीवनामध्ये या गोष्टी कळल्या पाहिजेत। माझी सेवा पाहून, माझं रूप बघून नव्हे, माझी सेवा पाहून म्हटलं पाहिजे तुझे मुख रम्य आहे, सुंदर आहे। माझी सेवा कशी असू द्या प्रियांनो, ती सेवा प्रभूला आवडणारी असावी। आणि खरोखर या 3 गोष्टी तुमच्या समोर ठेवल्या। पहिली गोष्ट, तुझे मुख बघू दे। दुसरी गोष्ट, तुझा आवाज ऐकू दे। तिसरी गोष्ट, तुझे मुख रम्य आहे आणि तुझा स्वर रम्य आहे। या सर्व गोष्टी मंडळीसाठी लिहिलेल्या आहेत। मंडळीतील प्रत्येकाने विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। आम्ही जर विचार करत नाही तर त्याला काय अर्थ आहे प्रियांनो? आज जरी पावसामुळे प्रत्येक जणांना उशीर झाला, काही हरकत नाही, तरीही आम्हाला गरज आहे प्रभूच्या समोर वेळेत येणे, कारण तो वाट पाहतोय तुमचं मुख पाहण्याची, तो वाट पाहतोय तुमचा शब्द ऐकण्याची, तो वाट पाहतोय तुमचा मधुर कंठ ऐकण्याची, आणि तो वाट पाहतोय तुमचं चेहरा न्याहाळण्याची, तुमचं मुख न्याहाळण्याची तो इच्छा धरत आहे। आणि एक जर पती आपल्या पत्नीकडे जर का अगदी टोकून पाहत असेल तर पत्नी काय म्हणते बरं? पत्नींनी उत्तर द्यावं। काय म्हणते पत्नी? बोलत नाही, पहिली अशी भुवया उंचावून म्हणते, का बघता? हां, अहो आमचा प्रभू आमच्याकडे बघतो, तर आम्हाला सुद्धा प्रश्न पडला पाहिजे, प्रभू माझ्याकडे का बघतोय? माझं काही चुकलं आहे का? माझं काही कमी राहिलं आहे का? जेवत असताना मी फक्त पत्नीकडे जर पाहिलं ना, काही मीठ कमी पडलं आहे का, जास्त झालं आहे का, तिला धास्ती वाटते का? माझ्या जेवणाला नावं ठेवते का? या ठिकाणी आम्हाला धास्ती वाटते का? प्रभू माझ्या सेवेला नाव ठेवते का? माझ्या येता येण्याला नाव ठेवते का? विचार करा। विचार करण्यासाठी गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत। प्रभू आम्हाला कुत्ता नाही म्हणत, बडबडणारा पोपट नाही म्हणत, आणि भुकणारा आपला ओरडणारा डॉंकीसुद्धा म्हणत नाही। तर आम्हाला काय म्हणतो? आगे कपोते, जी अगदी तुमच्या हातात जरी तुम्ही उचलून घेतलं तर ती शांत राहते, ती काही नख मारत नाही। मांजरीला घेऊन बघा, ती नख मारते, कुत्र्याला घेऊन बघा, नख मारते।
पण कपवते नाही, ती नख नाही मारत. अहो पुष्कळ प्राणी आहेत या शास्त्रात ज्यांचा आम्ही अभ्यास करू शकतो, विचार करू शकतो, पण आम्हाला आज फक्त एकाच प्राण्याकडे पाहायचं आहे, जी मंडळी आहे. या मंडळी खरोखर आम्ही प्रार्थना करूया, विचार करूया की तिने प्रभूला कसं सादर व्हावं. आणि असं सादर व्हावं की प्रभू तुमचे स्तुती करेल, तुमचं मुख पाहू इच्छेल. प्रभू हे करण्यास तुम्हाला सहाय्य करू. मजसाठी प्रार्थना करा, कारण दर दिवस सकाळी जे काही मनन चालते त्या मननामध्ये अनेक बंधुजन बोलतात. जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो सब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ. यूट्यूब पे अगर आपको किसी को देखना है तो एक अमूल्य सेवा ये टाइप करो, आपको सभी रिकॉर्ड किए हुए हिंदी और मराठी भाषिक सभी रिकॉर्ड आपको मिलेंगे. दर दिन आप सुनिए ताकि आपकी प्रभु में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए. अगर हमारी ग्रोथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे. लोग हमें पहचाने, हम प्रभु के लोग हैं, इसलिए हमें प्रभु की वचन की जानकारी होनी जरूरी है. प्रभु आपको आशीषित करे. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన. మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి, సృష్టికర్త, పరలోకపు తండ్రి, ప్రభా నాయనా నీకు వేలాది వేలాది స్తోత్రములు నాయనా. ప్రభా ఈ సమయంలో మాతో మాట్లాడినావు ప్రభా. బండ సందులో ఎగురు పావురమా, నీ స్వరం మాకు వినబడనీయు, నీ ముఖం చూడనియమని మాతో మాట్లాడినావు నాయనా. అవును ప్రభా, బండ అయి ఉన్న క్రీస్తు మాతో మాట్లాడుతున్నావు. మా స్వరం నీకు వినబడాలా, మా ముఖం కనబడాలా, మా ముఖము మధురంగా ఉండాలా నాయన. ప్రభా మమ్మల్ని చూస్తే నువ్వు సంతోషపడాలా, ఆ రకంగా మేము జీవించాలని మాతో మాట్లాడినావు నాయన. ప్రభా మా స్వరం నీకు వినబడాలా. ప్రభా నువ్వు ఒక రోజు రానై ఉన్నావు ప్రభా. సంఘం పరిశుద్ధంగా ఉండాలని చూస్తున్నావు. మమ్మల్ని అందరినీ పరిశుద్ధులుగా మార్చు నాయన. మా స్వరం నీకు వినబడేటట్లు మమ్మల్ని తయారు చేయి నాయన. మమ్మల్ని చూస్తే మేము మధురంగా కనబడాలి నాయన. మా క్రియలను మార్చు, మా తలంపులను మార్చు, మా ఆలోచనలు మార్చుము. మమ్మల్ని అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా. ఇది నేను వాక్యం మా హృదయంలో దాచి చక్కగా బ్రతకడానికి సాయం చేయి నాయన. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడిన మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించుము. ముఖ్యంగా ఎబినేజర్ సార్ను ప్రభా ఆశీర్వదించి దీవించి ఆరోగ్యం, బలం, శక్తి దయచేయి నాయన. మా ప్రార్థన అంగీకరించి మా కుటుంబం ఆశీర్వదిస్తావని నమ్ముచు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం బట్టి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి, కుమార, శుద్ధాత్మకును తగు స్తుతి మహిమలు